Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on geometry based on triangles. A very good question. इसमें बहुत सारे concepts हैं सीखने को. So I would request you कि आप सब लोग पहले से खुद से try करें, फिर ही solution देखें. Students, let me also tell you if you're a serious CAT aspirant और आप चाहते हैं आपको आपके WhatsApp पे ही सारी important information और notifications आती रहें related to different colleges and different exams, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स भी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. तो एक बार यार देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है. राइट. ओके, सो इट इज गिवन दैट in a triangle ABC, AB is equal to AC. D is a point on BC such that D is somewhere between B and C. So let us make the figure. So let's say this is triangle ABC. So I'll take this side, this vertex to be A, vertex B, vertex C. Now D is somewhere between B and C. So let's say D is here. It is also given that BD is 18 and CD is 30. BD is 18 and CD is 30. And we also know that angle CAD is 90 degree. So let us join A and D. Okay. So we know that CAD angle is 90 degree. So this angle is 90 degree. Okay. BD is 18, CD is 30. Now we have to find the triangle or area of triangle ABD. Now students, to solve this question, so there are a couple of properties you should know. अच्छा, तो पहले तो हमें ये भी गिवन है कि AB और AC बराबर है. So let me tell you those properties, then only you can solve this question. तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली दो साइड्स बराबर होंगी. राइट. सो लेट्स से ए बी एंड ए सी आर इक्वल. तो इसमें एक प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर अनइक्वल साइड पे, अनइक्वल मींस द थर्ड साइड, जो दो साइड्स बराबर है उसके अलावा जो थर्ड साइड है, अगर उस थर्ड साइड पे वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, राइट, so that perpendicular will also be the angle bisector. And not only this altitude, the perpendicular which we have drawn to the third side, it will also be the median, right? So let's say if this point is D, that means BD and CD will be equal to each other. So I'll quickly repeat the property. किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अनइक्वल साइड है, जो थर्ड साइड है, उस पे अगर आप एल्टीट्यूड बनाए या मीडियन बनाए या एंगल बाइसेक्टर बनाए, all of them are same, right? All of them are represented by the same line. So this is one property which you should know to solve this question. Another property, students, here is that if we have a right angle triangle, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है और 90 डिग्री वाला जो एंगल है अगर वहां से हम परपेंडिकुलर बनाए, राइट, सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल और 90 डिग्री वाले एंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो लेट्स टेक दिस ट्राइंगल टू बी ABC and altitude I have taken AD. So property says that AD square will be equal to BD into CD. ठीक है. ये कैसे आया मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. ये सिमिलैरिटी से आया है. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. नाउ व्हाई दीस two smaller triangles ABD and ADC are similar? Let's take this angle to be X. So if this is X, we know that this angle is 90 degree. So obviously this third angle, this would be 90 minus X. Now we know this complete angle A is 90 degree, जिसमें से angle BAD 90 minus X है. So obviously this angle would be X. Then only we are going to get angle A as 90. Now students, we know that angle CAD is X. This is 90. So obviously this will be 90 minus X. So if you look at these two triangles, they both are similar to each other because they have same angles. जो तीन एंगल इस ट्राइंगल के हैं वही तीन एंगल इस ट्राइंगल के हैं. सो आई होप आप सबको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है? सेम एंगल के सामने वाली साइड.
आई रिपीट, सेम एंगल के सामने वाली साइड। तो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं ट्राइंगल एबीडी की बात करूं, यहां 90 माइनस एक्स के सामने कौन सी साइड है? एंगल 90 माइनस एक्स के सामने साइड है बीडी। दूसरे ट्राइंगल में एंगल 90 माइनस एक्स के सामने कौन सी साइड है? एडी। सो बीडी एंड एडी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, राइट? एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्राइंगल एबीडी में एंगल एक्स के सामने वाली साइड देखूं, एंगल एक्स के सामने है एडी, और दूसरे ट्राइंगल में अगर हम एंगल एक्स के सामने देखें तो साइड आ रही है सीडी, तो एडी और सीडी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी। Now students, you can see if you cross multiply, you are going to get this same thing. AD square will be equal to BD into CD. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी क्वेश्चंस में ये यूज होगी। तो कभी भी आप देखें कि 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो 90 डिग्री वाले एंगल से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया हुआ है, सो यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द क्वेश्चन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, राइट? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर हम थर्ड साइड पे जो अनइक्वल साइड है उस पे अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, राइट? नाउ वी आर लुकिंग फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। सो इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल एबीडी, अगर इसका एरिया मुझे निकालना है तो कहने से आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर बीडी मेरा बेस है, राइट, बीडी को मैंने बेस ले लिया, तो कहने से अगर मैं हाइट निकाल लूं इस ट्राइंगल की, सो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब हाइट कैसे? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, राइट, वर्टेक्स ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो दैट परपेंडिकुलर इफ आई ड्रॉ, सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट परपेंडिकुलर विल आल्सो बी द मीडियन, राइट? अब ये जो है ये बीसी का मिड पॉइंट भी होगा। लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी ई, it will also be the midpoint of BC. Because it is midpoint of BC, we know that BC is 48. Now students, if BC is 48, then BE would be 24. Okay, BE is 24, so can I say DE would be 6? Okay, I hope ये बात सबको clear है। DE would be 6, and if we talk about EC, EC would be 24. Okay students, I hope सबको यहाँ तक clear है। Now students, just look at this triangle ADC. Okay, अगर आप ट्राइंगल ADC पे फोकस करें, we have a right angle triangle because this angle A is 90 degree, और यहां से एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, दिस इज पॉइंट E. We know that ED is 6, we know that EC is 24, and we need to find AE. So just now I have told you this property. So using this property, students, I can say that AE का square will be equal to 6 into 24. So students, AE square comes out to be 144, and AE will be equal to 12. Now students, if AE is 12, तो AE क्या है? Basically इस triangle की height है, right? It is also height for the triangle ABD. So area of triangle ABD would be half into BD into AE. मुझे BD भी पता है, मुझे AE भी पता है. So answer would be half into 18 into 12. So students, this comes out to be 18 into 6, which is 108. 108 is the correct answer. थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, बट आप देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यार ये है कि अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आधी अधूरी प्रॉपर्टीज याद करेंगे। यू शुड नो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। या वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करें। थैंक यू एवरीवन।